شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال الله تعالى في مقام آخر: إنا أنزلناه في ليلة القدر. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام عزیز بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج رمضان المبارک کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے اور آج 9واں روزہ ہے۔ کل کے روزے کے ساتھ رمضان المبارک کا ایک عشرہ مکمل ہو جائے گا اور بڑی تیزی کے ساتھ رمضان المبارک کے ایام گزر رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا۔ تو ابھی بھی وقت ہے کہ ہم مسلمان اپنے رب کو راضی کرنے کی بھرپور کوشش کریں اور اس ماہ مبارک کی خوب برکات حسنات سے اپنی جھولیاں بھریں اور اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش جاری رکھیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم انہیں ناکام و نامراد نہیں لوٹاتے۔ جو جس چیز کی کوشش کرتا ہے ہم اسے وہ چیز ضرور عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ مہینہ مغفرت حاصل کرنے کا مہینہ ہے، رب سے گناہوں کی معافی کروانے کا مہینہ ہے، رب سے جنت کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ دوزخ سے نجات حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، ایثار کا مہینہ ہے، قرآن پاک کے نزول کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ شب بیداری کا مہینہ ہے، اور دنوں میں خوب عبادت کا، تسبیحات کا، درود پاک کی کثرت کا مہینہ ہے۔ تو اس ماہ مبارک میں ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ خوب عبادت کا ہم اہتمام کریں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے دو آیہ مبارکہ کے حصے، بلکہ ایک آیہ مبارکہ اور ایک آیہ کریمہ کا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کے اندر اللہ پاک نے پہلی آیہ کریمہ میں فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے اس قرآن کو رمضان المبارک کے مہینے میں نازل فرمایا ہے۔ کس میں نازل فرمایا ہے؟ رمضان شریف کے مہینے میں۔ گویا کہ قرآن اور رمضان کو بڑا ایک دوسرے کے ساتھ گہرا تعلق ہے، اور اسی طرح سورۃ القدر میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔
کس میں اتارا ہے؟ لیلۃ القدر میں اتارا. اور لیلۃ القدر کس مہینے میں ہے؟ رمضان المبارک کے مہینے میں. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ لیلۃ القدر میں قرآن اتارا ہے. تو قرآن جس رات میں اترا، جس مہینے میں اترا، وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے. تو لہذا قرآن مجید فرقان حمید کو رمضان المبارک سے بہت قریب کا تعلق ہے. گویا کہ اس مہینے میں چاہیے کہ روزے بھی رکھے جائیں اور قرآن پاک کی خوب تلاوت کا اہتمام بھی کیا جائے. رمضان المبارک کی سب سے، نماز تو پورا سال انسان پر فرض ہے، لیکن رمضان المبارک کی سب سے افضل عبادت قرآن پاک کی تلاوت ہے. رمضان المبارک کی سب سے افضل عبادت کیا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت ہے. اور قرآن پاک کیا ہے؟ حضور کی امت کے لیے، تمام عالم انسانیت کے لیے وہ منشور حیات ہے، وہ دستور حیات ہے قرآن پاک. اور قرآن پاک کے اندر اللہ نے ہر خشک و تر کا ذکر فرمایا ہے. اور قرآن پاک متقین کے لیے ہدایت ہے، مومنین کے لیے شفا ہے. دلوں کی بیماریاں اگر ہیں تو قرآن پڑھو، اللہ دلوں کی بیماریاں دور کر دیتا ہے. شفاء لما فی الصدور، اللہ پاک سینے کی بیماریوں کو شفا سے تبدیل کر دیتا ہے جب انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے. قرآن پاک کا ایک ایک حرف رحمت سے مالا مال ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک کے ایک حرف کے بدلے اللہ پاک 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. ہر قرآن کے حرف کے بدلے ایک نیکی، اور وہ نیکی اتنی بڑی ہے کہ اس کا اجر 10 نیکیوں کے برابر ہے. قرآن پاک کا ایک حرف پڑھو، 10 نیکیوں جتنا اللہ اجر عطا فرماتا ہے. بتاؤ جب ہم دن رات قرآن کی تلاوت کریں گے تو ہمارے نامہ اعمال میں کتنی زیادہ اللہ نیکی عطا فرمائے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھی اللہ پاک اسے ایک قرآن پاک ختم کرنے جتنا ثواب عطا فرماتا ہے. اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک بار سورہ یاسین شریف تلاوت کی اللہ پاک اسے 10 قرآن پاک ختم کرنے جتنا ثواب عطا فرماتا ہے. یہ قرآن پاک کی فضیلت بیان ہو رہی ہے. اور قرآن پاک جیسی کتاب اللہ نے کسی نبی کو، کسی امت کو نہیں عطا فرمائی. یہ قرآن پاک صرف حضور کے واسطے وسیلے سے امت محمدیہ کو ملا ہے، جس کا پڑھنا عبادت ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی فرائض کے بعد نفلی عبادات میں سب سے افضل عبادت قرآن کی تلاوت ہے. قرآن کی تلاوت کا مقصد اللہ سے باتیں کرنا ہے. اگر آپ اللہ سے باتیں کرنا چاہتے ہیں قرآن پڑھیں. یوں سمجھیے کہ آپ اپنے رب سے گفتگو کر رہے ہیں، وہ رب کا کلام ہے. آپ جب رب کے کلام کو پڑھیں گے تو رب نے یہ اپنا پاک کلام حضور کے واسطے وسیلے سے ہمارے لیے عطا فرمایا. قرآن پاک کے اندر ہمارے لیے ہدایت ہے، ہمارے لیے نور ہے، ہمارے لیے روشنی ہے. ہماری قرآن رہنمائی کرتا ہے، بہترین رہنما ہے. اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے جو آپ نے آخری خطبہ ارشاد فرمایا، اس کے بعد جب آپ مدینہ شریف تشریف لا رہے تھے تو ایک ہاؤس پر آپ نے خطبے کا ارشاد اہتمام فرمایا. اس میں آپ نے فرمایا میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ وہ کون سی 2 چیزیں؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو میں تمہارے درمیان اللہ کا پاک کلام چھوڑ کے جا رہا ہوں قرآن، اور دوسرا حضور نے فرمایا میں اپنی سنت اور اپنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. اگر تم ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں میری سنت اور میری اہل بیت کو تھامے رکھو گے تو خدا کی قسم تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. حضور نے فرمایا اگر تم انہیں تھامے رکھو گے تو یہ تمہیں
mahshar के दिन हौज़े कौसर पर मुझसे आके मुलाकात करवाएंगे, मुझसे आके क्या करेंगे, मुलाकात करवाएंगे। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कुरान पाक के नुज़ूल का महीना है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कुरान पाक से जुड़ें, हम कुरान पाक की तिलावत का एहतमाम करें। मस्जिदों में भी करो, दुकानों में भी करो, और घरों में भी तिलावत कुरान पाक का एहतमाम। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत की जाती है उस घर से शैतान दूर हो जाता है, उस घर से शैतान निकल जाता है, उस घर से नहुसत खत्म हो जाती है, बेबरकती भाग जाती है, और हर तरह की नफरतें मोहब्बतों में बदल जाती हैं जिस घर में कुरान की तिलावत की जाती है। क्योंकि जब कुरान पढ़ा जाता है तो आसमान से फरिश्ते नाज़िल होते हैं। आपको सुन के हैरानगी होगी, जितनी साबका अल्लाह पाक ने किताबें नाज़िल फरमाई है, जब वो किताबें पढ़ी जाती थी तो जमीन वाले सुना करते थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर अल्लाह पाक ने ज़बूर को नाजिल फरमाया, और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ऐसी प्यारी आवाज अता फरमाई थी, जब वो ज़बूर की तिलावत करते थे तो लोगों के कलेजे फट जाते थे। और तिलावत करने के लिए हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जंगलों की तरफ जाते, आपके साथ आपके बस्ती वाले भी, आपके उम्मती भी, शहर वाले भी उस ज़बूर की तिलावत को सुनने के लिए जाते। अल्लाह अकबर। सबसे पहले उलमा की सफ़े बनती, फिर उमरा की, फिर आम अवामुन नास की। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जब ज़बूर की तिलावत करते थे तो लोगों की आंखों से आंसू जारी हो जाते थे, दिल नरम पड़ जाते थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जब ज़बूर की तिलावत करते थे तो उड़ते हुए परिंदे अपने उड़ने की जो हैयत होती है, उनकी जो एक कैफियत है, उस कैफियत को भूल जाते थे, उड़ना भूल जाते थे। अगर नदी के किनारे ज़बूर की तिलावत करते तो चलता हुआ पानी रुक जाता था, ऐसी उनकी आवाज के अंदर कशिश थी। अल्लाह के नबी और रसूल थे, लेकिन जमीन वाले सुनते थे, आसमान वाले नहीं सुनते थे। लेकिन ये कुरान पाक का एजाज है कि जब कुरान की तिलावत हुजूर का कोई गुनाहगार उम्मती भी करे, उसको सुनने के लिए आसमान से फरिश्ते नाजिल होते हैं। आसमान से कुरान की तिलावत के वक्त सकीना नाजिल होता है, रहमत नाजिल होती है, अल्लाह की रहमत जोश में आ जाती है। कुरान जब तिलावत किया जाता है, जमीन वाले भी सुनते हैं, आसमान वाले भी सुनते हैं। अल्लाह अकबर। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दफा मैं जन्नत का विजिट करने के लिए गया तो मैंने देखा कि खूबसूरत कुरान पढ़ने वाले की आवाज आ रही है, जन्नत में गूंज रही। मैंने जिब्रील से पूछा, ये किसकी आवाज है? अर्ज की गई, या रसूल अल्लाह, आपके एक सहाबी है जिनका नाम है हारिसा बिन नौमान, ये जमीन पे बैठ के कुरान पढ़ रहे हैं और जन्नत से इनकी आवाज से जन्नत गूंज रही है। अल्लाह अकबर। जमीन पे बैठ के कुरान अगर कोई पढ़े और वो हो कुरान का सच्चा आशिक और वो अल्लाह का खौफ रखने वाला हो, उसके कुरान की तिलावत से जन्नत में उसकी आवाजें गूंज रही होती है, जन्नत महक रही होती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सुना कि ये मेरे सहाबी की आवाज है तो सरकार ने फरमाया, एहसान का बदला यही होता है, एहसान का बदला यही होता है, क्योंकि वो मेरा सहाबी अपनी वालदा की खिदमत करता है, उसने सलूक करता है, अल्लाह ने उसको ये शान अता कर दी है। वो बैठा तो जमीन पे है, कुरान तो वहां पढ़ रहा है, लेकिन उसकी आवाज जन्नत में गूंज रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो पता चला कि बंदे को वालिदैन की खिदमत कहां से कहां पहुंचा देती है। और कुरान की तिलावत से इंसान की इज्जत में इजाफा होता है, इंसान की अजमत में इजाफा होता है, इंसान के वक़ार में इजाफा होता है। कुरान की तिलावत से इंसान को सेहत नसीब होती है, कुरान की तिलावत से इंसान के रिज़्क़ में इजाफा होता है, कुरान की तिलावत से इंसान के दिलों की बीमारियां जल के राख हो जाती हैं,
कुरान की तिलावत से इंसान के अंदर हुस्न अखलाक की कैफियत पैदा होती है। कुरान की तिलावत से इंसान के अंदर खौफ खुदा पैदा होता है। कुरान की तिलावत के जरिए से इंसान का दिल नरम होता है। कुरान की तिलावत करने से इंसान के दिल में नेकियों के हवाले से मोहब्बत पैदा होती है और गुनाहों के हवाले से नफरत पैदा होती है। कुरान पढ़ने वाले से शैतान भागता है। अल्लाह अकबर। कुरान पढ़ने वाला रहमान का भी महबूब बन जाता है और मोहम्मद मुस्तफा का भी महबूब बन जाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कुरान पाक की तिलावत का एहतमाम करें। ये प्यारा महीना हमें नसीब हुआ है, अल्लाह ने हमें अता किया, इसको गफलत में ना गुजारो। हुजूर ने फरमाया रमजानुल मुबारक को बाकी 11 महीनों की तरह ना गुजारो, इसमें तुम्हारे आमाल में इजाफा नजर आना चाहिए, तुम्हारे नेकी के जज्बों में इजाफा नजर आना चाहिए, तुम्हारी तस्बीहात में इजाफा नजर आना चाहिए। सहाबाए किराम कहते हैं बाकी पूरा साल हुजूर सदकात खैरात करते, इसार करते, गमखारी करते, लेकिन रमजानुल मुबारक में आपके तमाम अमाल में इजाफा हो जाता था। आपके तमाम अमाल जो आप पूरा साल बजा लाते उनमें इजाफा हो जाता। हत्ता के रमजानुल मुबारक के जो जो दिन गुजरते हुजूर की इबादत में इजाफा होता चला जाता। हत्ता के आखिरी अशरे में ना हुजूर दिन को सोते थे ना हुजूर रात को सोते थे, सारी रात इबादत कर। और सहाबाए किराम को गाहे बगाए आप जो है वो बताते कि रमजानुल मुबारक का महीना है, ये बड़ी जल्दी से गुजर रहा है, इसमें खूब इबादत का एहतमाम कर लो, ज्यादा से ज्यादा नेकियां इकट्ठी कर लो। माशर के दिन ये हमें कायदे आदम की तस्वीर वाले पैसे काम नहीं आएंगे, ये डॉलर ये यूरो काम नहीं आएंगे, सोना चांदी काम नहीं आएगा। अगर माशर के दिन कुछ काम आएगा तो हमें नेकियां काम आएंगी। और वहां पर अल्लाह का उसूल है जिसकी जितनी ज्यादा नेकियां होगी अल्लाह पाक जन्नत में उसको उतना बड़ा दर्जा और बड़ा मकाम और बड़ा घर अता फरमाएगा। तो मेरे दोस्तों नेकियां ज्यादा इकट्ठी कर लो, पैसे भी इकट्ठे करने चाहिए। वो आपके अंदर भी मोहब्बत है, मेरे अंदर भी मोहब्बत है, पैसा किसी को बुरा नहीं लगता, पैसा भी इकट्ठा करो, साथ में अपनी आखिरत की जो दौलत है वो पैसा नहीं है, वो नेकियां है, वो नमाज के सजदे हैं, वो रुकू है, वो क़ियाम है, वो तशहुद है, वो रोजा है, वो कुरान की तिलावत है, वो तस्बीहात है, इस्तिग़फ़ार है, कलमा है, अल्लाहु अकबर, इसी तरह दीगर कलिमात खैर हैं। जब आप इनको पढ़ते हैं तो यूं समझे कि आखिरत के बैंक बैलेंस आपका बढ़ रहा होता है। आपका बैंक बैलेंस क्या है? बढ़ रहा होता है। जब आप इस दुनिया को छोड़ के उस जहान में जाएंगे तो आपके जब अकाउंट खुलेंगे तो खाली नहीं होने चाहिए, बल्कि उनमें ज्यादा से ज्यादा नेकियां होनी चाहिए। अल्लाह अकबर। और नेकियां करते हुए गुनाहों से भी बचे, किसी की गीबत ना करें, चुगली ना करें, किसी का बुरा ना सोचें। अल्लाह अकबर। अपने रब को राजी करने की कोशिश करें, जब खुद आपसे राजी हो जाएगा। अगर लोगों को राजी करने के लिए आप निकले तो आप अपने रब को कभी मना नहीं पाएंगे। मखलूक आज तक किसी से राजी हुई है? क्या मुझे ये बताओ, अल्लाह पैदा करने वाला है, रिज़्क़ देने वाला है, सेहत देने वाला है, ये चलती हुई सांसें सारी उसकी मेहरबानी अता से हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो रब की जात का ही इनकार करते हैं, उसका सिरे से इनकार कर देते हैं। जो इतना कुछ अता फरमा रहा है वो कह रहे खुद ब खुद ये दुनिया का निजाम चल रहा है, लेकिन उसमें अगर देखा जाए तो थोड़े हैं मानने वाले, ज्यादा कोई 3 को मानता है, कोई उसके साथ शिर्क कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, अल्लाह अकबर अल्लाह, लेकिन फिर भी वो सबको नवाज रहा। तो लोग कभी राजी नहीं होते, रब को राजी कर लो, इंशाअल्लाह तुमसे तुम्हारे रब ने हिसाब लेना है, लोगों ने हिसाब नहीं लेना। तुमने माशर के दिन रब को जवाब देना है, लोगों को जवाब नहीं देना। इसीलिए लोगों के साथ कोई बुरा ना करो तो तुमसे तुम्हारा हिसाब होगा, लोगों का हिसाब नहीं होगा। अगर बुरा करके जाओगे तो फिर अल्लाह ने तो इंसाफ का तराजू लगाना है, फिर उसने तो जिस हकदार का हक है अल्लाह पाक उसको दिलाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो कुरान पाक की तिलावत का एहतमाम करें। रमजानुल मुबारक के अंदर हर रात में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते और हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दौर फरमाते थे। कुरान जिब्रील हजरत हुजूर को सुनाते, कुरान हुजूर जिब्रील को सुनाते थे।
अल्लाह अकबर। और हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा साल मामूल होता कि आप नमाज तहज्जुद में, क़ियामुल लैल में बड़ी बड़ी सूरतों की तिलावत फरमाते, कई कई सिपारे आप जो है वो एक एक रकत में तिलावत फरमाते, हत्ता कि आपके पाँव मुबारक सूज जाते थे। आज हम कहते थे तरावी में ज्यादा वक्त लग गया है। मेरे भाई आप थोड़ा सा ये नहीं सोचते यार एक ना एक दिन हमने मर के कब्र में जाना है, वहां तो नींद ही नींद है, वहां तो नमाजें नहीं है, वहां तो रोजे भी नहीं है। हाँ, अगर आपने दुनिया में कुरान से मोहब्बत की है तो अल्लाह पाक आपकी इस मोहब्बत को जाया नहीं देगा। कुरान पढ़ने के लिए अल्लाह आपको कब्र में भी तौफीक अता फरमाए। एक सहाबी रसूल का वाकया है, अल्लाह अकबर। उस किसी गजवे में हुजूर तशरीफ ले जा रहे थे, रास्ते में एक जगह पड़ाव डाला, एक सहाबी ने जिस जगह खैमा लगाया, अल्लाह अकबर, सारी रात उनका घोड़ा बिदकता रहा, उन्हें नींद ना आई। सुबह को जब उन्होंने हुजूर की बारगाह में यह वाकया पेश किया तो उन्होंने, सरकार ने फरमाया आपने खैमा कहाँ लगाया? उन्होंने अर्ज की या रसूलल्लाह वहां लगाया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुमने जहां खैमा लगाया है वो शहीद की कब्र की जगह है, वहां शहीद की कब्र है। और उसे सूरह मुल्क से बड़ी मोहब्बत थी, सूरह मुल्क से बड़ी मोहब्बत थी। अब जब भी रात आती है तो अल्लाह ने उसकी मोहब्बत का ताल्लुक तोड़ा नहीं है, वो आज भी हर रात कब्र में सूरह मुल्क की तिलावत करता है। और जब तिलावत होती है तो आसमान से फरिश्ते उस कब्र में तिलावत करने वाले की सूरह मुल्क की तिलावत सुनने के लिए आसमान से उतरते हैं। और ये जो तेरा घोड़ा बिदक रहा था ये दरअसल आसमान से उतरने वाले फरिश्तों को देख के डर रहा था, इसलिए वो बिदक रहा था। अल्लाह अकबर। अगर कुरान से मोहब्बत करोगे तो इंशाअल्लाह कब्र में भी अल्लाह पाक कुरान की तिलावत जारी रखेगा, तौफीक देगा। पढ़िए कुरान। अल्लाह अकबर। यार वो कितने खुश नसीब हैं, हम जिंदा होकर नहीं पढ़ रहे और कुछ ऐसे थे कि मरने के बाद भी वो कब्रों में भी कुरान जारी रखे हुए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कुरान से जुड़े, ये अल्लाह का पाक कलाम है। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन बंदे की शफाअत दो चीजें करेगी, एक रोजा और एक कुरान पाक की तिलावत। रोजा कहेगा या अल्लाह ये रमजानुल मुबारक में सारा दिन भूखा रहता था, प्यासा रहता था, प्यास भी लगती थी, भूख भी लगती थी, गर्मी भी होती थी, सब कुछ होता था। इसका नफ्स कहता था ना रख, प्यास लगेगी, भूख लगेगी, लेकिन ये कहता था ना मैं रोजा रखूंगा, मैं अपने रब को नाराज नहीं करता, मैं रोजा नहीं छोड़ूंगा। तो रोजा कहेगा या अल्लाह इसने मेरे लिए भूख प्यास बर्दाश्त की, आज तू मेहरबानी फरमा, मैं इसकी सिफारिश कर रहा हूँ, इसके गुनाह माफ कर दे, इसको मेरे साथ जन्नत में भेज। कुरान आएगा, कुरान कहेगा या अल्लाह ये सारा दिन भूख प्यास बर्दाश्त करता था, थका हारा होता था, लेकिन उसके बावजूद जब रात होती थी अफ्तार के बाद ये थक जाता था, इसके जिस्मानी आज़ा इसका साथ छोड़ने लगते थे, वो कहते थे आराम कर। इसका नफ्स भी चाहता था थोड़ी देर सस्ता ले, आराम कर ले, लेकिन ये कहता था ना मैं कुरान सुने बगैर नहीं सोऊंगा। तो मेरी मोहब्बत इसे सोने नहीं देती थी, इसने अपनी थकावट को मुझ पे कुर्बान किया। या अल्लाह इसने दुनिया में मेरे लिए कुर्बानी दी, आज मैं तेरी बारगाह में सिफारिश करता हूं कि तू मेरी सिफारिश को इसके हक में कबूल फरमा और इसको बदले में जन्नत अता फरमा। तो अल्लाह रोजे से कहेगा, अल्लाह कुरान से फरमाएगा जो तुम्हारी सिफारिश है मैंने कबूल की है, जाओ इससे कहो जितना हिस्सा इसे कुरान पाक का याद है ये जन्नत के दर्जे चढ़ता जाए और कुरान पढ़ता जाए। जहां कुरान खत्म कर देगा वहां इसका मैं जन्नत में मकाम बना दूंगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि कुरान पाक आपकी शफाअत करे, कुरान रोजा आपकी शफाअत करे, तो फिर आप रमजानुल मुबारक में कुरान से जुड़िए। कुरान पढ़ना नहीं आता, पढ़ने की कोशिश कीजिए, किसी से रहनुमाई लीजिए। ये कोई उज़र नहीं है मेरी दाढ़ी सफेद होगी अब मैं पढ़ूंगा लोग क्या कहेंगे। तो आपने बचपने में क्या किया है, फिर क्यों नहीं पढ़ा? गलती है ना। अब आप इस उम्र के
के हिस्से में तवज्जो दिलाने पर एहसास अगर हो रहा है, आप दूसरी गलती कर रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे। लोग छोड़ो लोगों को, आप लोगों के लिए पढ़ रहे हो, आप अपनी आखिरत संवारने के लिए पढ़ रहे हो। आप लोग रहनुमाई पैसा कमाते हुए शर्म नहीं आती मुसलमानों को माजरत के साथ कि हमारी दाढ़ी सुबह होगी, लोग क्या कहेंगे, अरे दाढ़ी सुबह होगी, अभी भी दुनिया के पीछे पड़ा हुआ है। कभी किसी ने ये कहा, ये कहकर किसी ने दुनिया छोड़ी। कुरान पढ़ेंगे तो लोग क्या कहेंगे, हैं? नमाज किसी को सुनाएंगे, गलती आएंगी तो लोग क्या कहेंगे। कभी पैसा कमाते हुए भी कभी बैठ के सोचा यार ये हलाल है या हराम है। कमा तो रहा हो, जराए कैसे हलाल है या हराम है। हमें तो शर्म यहाँ आनी चाहिए कि अगर नाजायज है तो हम अल्लाह से तौबा करें, लेकिन यहाँ पर किसी को आप देखेंगे शर्म नहीं करता पैसा कमाने में। पैसा आना चाहिए, लेकिन दीन की तबलीग, दीन का काम, दीन के बारे में दावत देने में हम मुसलमानों को शर्म महसूस होती है। हालांकि इस मामले में किस चीज की शर्म है, कौन सा कोई आप गलत काम करने जा रहे हैं। आप जिस उम्र के हिस्से में कुरान सीखने की नियत से आप कोशिश करेंगे, अगर इसी हाल में आप मर गए तो यूं समझे कि आप दीन के तालिब इल्म हैं, अल्लाह आपको शहादत की मौत का दर्जा अता फरमाएगा। शहादत की मौत का दर्जा। जो बंदा इल्म के रास्ते पर इल्म हासिल करने के लिए निकले किसी रास्ते पर और उसको मौत आ जाए तो अल्लाह पाक उसको दर्जा शहादत अता फरमाता है। क्या अता फरमाता है? दर्जा शहादत अता फरमाता है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अगर कुरान नहीं पढ़ा, पढ़ने की कोशिश कीजिए। जिस मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, अगर वहां आपको शर्म महसूस हो रही है, आज शहर में आप रह रहे हैं, हर गली में मस्जिद है, आप किसी और मस्जिद, पास वाली मस्जिद में किसी से रहनुमाई ले लें। अगर और कुछ नहीं तो किसी हाफिज साहब को आप अपने घर में ही बुला लें, 2-3 हज़ार रुपया आप दे दिया करें उसको। वैसे भी तो आप उल्टे सीधे कामों में लगा देते हैं, तो क्या ये अच्छा है? कुरान सीखने के लिए कुछ खर्च करेंगे, सवाब भी मिलेगा, हाफिज कुरान भी आएगा, हमें कुरान भी सिखाएगा। लेकिन हमने यूनिवर्सिटियों में हजारों रुपए खर्च करेंगे, कॉलेजों में करेंगे, करना चाहिए, बुरा नहीं कह रहा, लेकिन वो इल्म कौन सा है? वो सिर्फ दुनिया में आपके चंद साल आपकी औलाद के काम आएगा। लेकिन कुरान ये वो दौलत है, अगर मिल गई तो अल्लाह दुनिया में भी अजर अता फरमाएगा और ये कुरान तुम्हारे साथ कब्र में भी जाएगा और हश्र में भी होगा और जन्नत में भी तुम्हारे साथ होगा। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन हजरत अंबियाए किराम भी अपने उम्मतियों की शफाअत करेंगे, नेक वालिदैन अपनी गुनहगार औलाद की शफाअत करेंगे, नेक दोस्त अपने बुरे दोस्तों को भी इज्जत दिया जाएगा, इनकी शफाअत करना चाहो तो करो। यानी औलियाए किराम अपने मुरीदीन की शफाअत करेंगे अल्लाह के इज़्ज़त से। लेकिन हुजूर ने फरमाया क़यामत के दिन जिसकी सबसे बेहतरीन शफाअत होगी वो कुरान पाक होगा, जो अपने पढ़ने वालों को, अपने मोहब्बत करने वालों को ही शफाअत करेगा। इससे बेहतरीन किसी की शफाअत नहीं होगी। हुजूर के एक सहाबी थे, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको किसी गज़वे में बड़ा बना के भेजा, अमीर बना के भेजा। अब जब वो नमाज पढ़ाते तो पहली रकअत में जहां से भी चाहते कुरान पाक का हिस्सा तिलावत करते, लेकिन हर दूसरी रकअत में वो सूरह इखलास की तिलावत किया करते। जब वो सहाबा लौटे तो हुजूर ने उनसे अहवाल दरियाफ्त किए, तो कुछ सहाबा किराम ने ये हुजूर से अर्ज की कि जिनको आपने हमारा बड़ा बना के भेजा था, पहली रकअत में तो ये जहां से चाहते थे कुरान पढ़ते थे, लेकिन दूसरी रकअत में ये सूरह इखलास पढ़ते थे, हमें इसकी वजह समझ नहीं आई। और भी सूरतें हैं वो पढ़ सकते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया, उन्हें पूछा, उन्होंने अर्ज की, या रसूलल्लाह, सारा कुरान अल्लाह का कलाम है, लेकिन मुझे सूरह इखलास से मोहब्बत है, मुझे सूरह इखलास से मोहब्बत है। सरकार ने फरमाया, अगर तुझे कुरान की इस सूरत से मोहब्बत है तो फिर याद रख, जन्नत में दाखिले के लिए इस सूरत की मोहब्बत ही तेरे लिए काफी है। ये कुरान की सूरत की मोहब्बत तुझे जन्नत में दाखिल कर देगी। अरे जिसको सूरह इखलास से मोहब्बत थी, हुजूर ने उसे जन्नत की बशारत दी है। ऐ मुसलमानों, अगर हमें सारे कुरान से मोहब्बत हो जाए तो खुदा की कसम फिर हमें जन्नत में जाने से कौन रोक सकता है?
अल्लाह अकबर। ये जो हम कुरान पढ़ते हैं, जब मर जाएंगे कब्र में अंधेरे होंगे, कुरान की सूरतों की रोशनी के चिराग हमारी कब्र में जला दिए जाएंगे। अल्लाह अकबर अल्लाह। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस दिल में जितना ज्यादा कुरान है वो उतना दिल आबाद है, वो उतना दिल आबाद है। और जिसके दिल में कुरान नहीं है, खाली है, वो दिल वीरान घर की तरह है। वो क्या है? वीरान घर की तरह है। अभी रमजानुल मुबारक का महीना है, छुट्टियां भी जल्दी हो जाती हैं, ऑफिस से आप आते हैं, कुछ सूरतें याद कर लो। क्या? कुछ सूरतें याद कर लो, आखिरी 10 सूरतें याद कर लो मेरे भाई, जो पूरा साल नमाज में हमें पढ़ने में काम आएंगे। कोशिश करें, कोशिश करें। इंशाअल्लाह ताला हम रमजानुल मुबारक के दूसरे अशरे से असर के बाद ये 10 सूरतें, नमाज जनाजा, जो भी चीजें पढ़ी जाती हैं, हम इंशाअल्लाह ताला इसका 20 रोजा कोर्स करवाएंगे। और मैं कोशिश करूं, मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि वो इज्तिमाई हल्का होगा, किसी को पता नहीं चलेगा किसकी क्या गलतियां हैं। पढ़ाएंगे हम अपने दौरान आए, उस दौराई में आपने अपनी गलतियों की इस्लाह खुद ही कर लेनी है, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। ये महीना अपनी इस्लाह का महीना है। सिर्फ इस्लाह गुनाहों से बचना नहीं है, कुरान पाक अगर नहीं आता, गलत पढ़ते तो उसकी भी इस्लाह की जरूरत है। इस माह मुबारक में कर लें, क्योंकि ये नेकियों का महीना है। हर आदमी के सर पे टोपी आप देखेंगे, बकसरत लोग मस्जिद में नमाज की तरफ आते देखेंगे, ना आने वाला भी देखा देखी में मस्जिद में आ जाता है, ऐसा माहौल बन जाता है। खुदा की कसम, ये रमजानुल मुबारक के अंदर इतनी लोगों की कसरत होती है मस्जिद में, अगर ये पूरा साल इस तरह नमाज़े पंजगाना में हाजिर होना शुरू हो जाए तो खुदा की कसम, ना अमेरिका हमारे सामने खड़ा हो सकता है, ना इजराइल हमें आंखें दिखा सकता है। मुसलमानों की इबादत ही उनके दिलों पर खौफ तारी करने के लिए काफी है। लेकिन क्या है कि हमारा ताल्लुक अपने रब से कमजोर हो गया, और इस ताल्लुक को इस माह मुबारक में मजबूत कीजिए, और बेहतरीन मौका है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 10 रमजानुल मुबारक सैयदाए कायनात, मखदूमाए कायनात, मोहसिना इस्लाम, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी ज़ौजाए मोहतरमा, क्या प्यारी ज़ौजाए मोहतरमा, मोमिनों की सबसे पहली माँ उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का यौम विसाल है। 10 रमजानुल मुबारक। आपकी अपनी माएँ, उनको सलाम है, हर मुसलमान की माँ को सलाम है, पर सारी माएँ उस माँ के पाँव वाले निशान पे कुर्बान कर दी जाएं जिस माँ ने उस वक्त इस्लाम की खिदमत की, जब सरकार फरमाते लोग मुझे झुठला रहे थे, लेकिन मेरी रफीका हयात खदीजा मेरी तस्दीक कर रही थी। लोग मेरे साथ बैठना पसंद नहीं करते थे, खदीजा मेरे लिए अपनी आंखें और अपने दिल और अपनी रूह को बिछा रही थी। जब लोग मुझे सता रहे थे, ये मेरे लोगों के दिए हुए जख्मों पर मरहम पट्टियां कर रही थी। जब लोग मेरे सवाल पर कुछ देना पसंद नहीं कर रहे थे, उस वक्त ये मोमिनों की माँ अपना माल दौलत सब कुछ इस्लाम के नाम पे कुर्बान कर रही थी। सरकार ने फरमाया मुझे खदीजा जैसा बीवियों में नेमल बदल अल्लाह ने नहीं अता फरमाया। और हुजूर को इतनी मोहब्बत थी, 25 साल आपके साथ रफाकत रही। कितनी साल? किसी और ज़ौजा को ये एजाज हासिल नहीं है कि 25 साल उसने नबी के साथ शब रोज गुजारे। ये सिर्फ सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का एजाज है कि हुजूर के साथ उन्होंने गुजारे। अल्लाह अकबर। सरकार ने दूसरे निकाह का ही नहीं सोचा। और हुजूर की उम्र मुबारक कितनी थी जब निकाह हुआ? 25 साल। और अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र मुबारक कितनी थी? 40 साल। बताइए, 25 साल में शादी हुई, 25 और 25 साल की रफाकत है, यू गोया 50 साल, यानी 25 से 50 साल तक मोमिनों की माँ ने दिन रात मेरे आका की खिदमत और नौकरी की। एक दिन अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज की कि अल्लाह पाक ने एक बुढ़िया को आप याद करते रहते हैं, अपनी तरफ इशारा किया। और हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा सिर्फ गवारी थी, बाकी जितने भी अज़वाज मुतारक मोमिनों की माएँ जिनसे आपने निकाह फरमाया या तो वो मुतलका थी या बेवा थी। और हुजूर ने बकसरत ये जो निकाह फरमाए इसमें भी मसलहत पसंदी थी, मुख्तलिफ कबाइल से आपने निकाह फरमाए ताकि इन कबाइल से मेरी रिश्तेदारियां जुड़े, ताकि मेरे रब की तौहीद का पैगाम ज्यादा से ज्यादा जाए, लोग ज्यादा से ज्यादा इस्लाम की तरफ माइल हो। हिकमत देखिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सरकार ने फरमाया सिवाय मेरे इब्राहिम बेटे के अल्लाह ने सारी औलाद मुझे मेरी खदीजा के बतन से अता फरमाई। अल्लाह अकबर। गोया यूं कहो कि हसनैन करीमैन की नानी जान का नाम अम्मा खदीजतुल कुबरा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरत अली की सास साहिबा का नाम उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा है। अल्लाह अकबर। अम्मा खदीजा मक्का के अंदर रईस किस्म की खातून थी और मक्का की कामयाब तरीन जो है वो बिजनेसमैन खातून थी और सबसे ज्यादा माल और दौलत में आपका शोहरा था। अल्लाह अकबर। लेकिन याद रखो मेरे नबी से जब शादी हुई ना, अल्लाह अकबर, जब जाने लगी ना तो अम्मा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने इतना भी आपके पास पैसे नहीं थे कि आप कफन खरीद सकती, तो आपने अपनी बेटी फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा के जरिए पैगाम भेजा कि मेरा सफर आखिरत है, अपने बाबा से कहो अगर तेरी कमली तेरी चादर जिस पे वही उतरती है अगर कफन के लिए खदीजा को मिल जाए तो खदीजा के लिए बड़ी सआदत की बात होगी। अल्लाह अकबर। कहाँ मक्का की सबसे बड़ी बिजनेसमैन, कहाँ मक्का की सबसे कामयाब तरीन ताजरा और कहाँ मक्का की सबसे ज्यादा जो है वो तिजारत करने वालों में अमीर तरीन औरत, लेकिन इस्लाम के लिए एक एक पाई कुर्बान कर दी। अल्लाह अकबर। आखिरी वक्त में कफन के भी पैसे नहीं, इतनी कुर्बानियां दी हैं। अल्लाह के नबी जब तक हयात रहे आप उनको हमेशा याद रखते रहे। तो उम्मत को भी चाहिए कि जिसको नबी ने याद रखा है उम्मत भी उसे याद रखे। आप उस दिन दो माओं का खत्म दें, जिनकी माएँ फौत हो गई हैं उस दिन दो फातिहा पढ़ो, एक अपनी माँ की और एक मोमिनों की माँ की, और मोमिनों की माँ के वसीले से दुआ करो या अल्लाह सैयदा खदीजा ये भी मेरी रूहानी माँ है, इसके सदके मेरी रूहानी और जिस्मानी माँ की मगफिरत फरमा दे, दुआ करें। और ये वो मोमिनों की माँ है जिसकी कुर्बानियों को अल्लाह ने इतना पसंद फरमाया कि अल्लाह ने बवास्ता जिब्रील इनकी तरफ सलाम भेजा। जिब्रील ने आकर कहा या रसूलल्लाह ये जो बुढ़िया आपके लिए बर्तन में कुछ लाई है खाने के लिए, इसको कहो कि तेरा रब तुझे सलाम कह रहा है। अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह सलाम कह रहा है और सिर्फ सलाम नहीं कह रहा, और रब कह रहा है कि खदीजा से कहो कि तेरी कुर्बानियों को तेरे रब ने इतना कबूल किया है कि तेरे लिए अल्लाह ने मोतियों को खाली करके अंदर से कुरैद के मोतियों को कुरैद के अंदर से एक महल बनाया है जो खदीजा के नाम अलाट कर दिया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो 10 रमजानुल मुबारक ये मोमिनों की प्यारी माँ का ये जो है वो हमें इंशाल्लाह दिन मिलेगा। तो कोशिश कीजिए अपने घर में जो फातिहा है, जो आप अफ्तार है, और कुछ ना हो सके यार पानी ही घर का सामने रख के फातिहा पढ़ देना। मोमिनों की माँ को आपकी मोहब्बत चाहिए, आपकी अकीदत चाहिए। अल्लाह दिलों को देखता है, जिसके पास जितना वो खर्च करे मैंने खर्च कर दिया। आपकी माँ की किस दिन बरसी है वो आप करते रहें, लेकिन 10 रमजानुल मुबारक को अपनी माँ की भी बरसी करो और मोमिनों की माँ की भी बरसी करो, और मोमिनों की माँ के वसीले से अपनी माँ की मग़फ़िरत की दुआ करो। इंशाअल्लाह अल्लाह सैयदा के सदके तुम्हारी माँ के लिए अल्लाह दर्जा बुलंद फरमाएगा। और सैयदा के दर से क्या मिला? ये अब्दुल्ला शाह गाज़ी उनके दर से अल्लाह ने हमें अता फरमाए। ये उन्हीं की हजरत फातिमा की औलाद में से है ना, इमाम हसन इमाम हुसैन। अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला शाह गाज़ी उनके सदके मिले, दाता अली हिजवेरी उनके सदके मिले, गरीब नवाज उनके सदके मिले। ये जितने सादात मिले हैं, ये जो आज देख रहे हैं इस्लाम हम तक पहुंचा है, ये सब सैयदा का सदका है।
انہی کے در سے اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے محسنوں کو یاد رکھیں جس طرح ہمارے آقا یاد رکھتے ہیں. اور جس سال آپ کا وصال ہوا اس دن اس سال کو عام الحزن کے نام سے یاد کیا گیا کہ آپ کی رفیقہ حیات جو آپ کے زخموں پر مرہم کرتی تھی, جو آپ کا دل بتاتی تھی, آپ کے کفار مشرک آپ کے حوصلوں کو توڑتے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آتے تو ام عائشہ ایسے الفاظ سے آپ کا استقبال کرتی کہ سرکار فرماتے پھر میرے ارادے جوان ہو جاتے تھے. اللہ اکبر, پھر میرے اندر ایک طاقت پیدا ہو جاتی تھی. اللہ اکبر, یہ ایسی میری رفیقہ حیات تھی. تو انشاءاللہ ہم ان کو بھی خراج عقیدت پیش کریں گے. تو میں آپ حضرات سے یہی گزارش کروں گا میرے دوستوں میرے بھائیوں, رمضان المبارک میں ہم آپ کے لیے جو بھی کر رہے ہیں اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. یہ ممبر پہ بیٹھا ہوں, میں کسی مالدار نمازی کو خوش کرنے کے لیے یہ سب نہیں کر رہے. اگر قاری صاحب قرآن سنا رہے ہیں تو یہ پیسوں کے لیے نہیں سنا رہے ہوں گے, یہ اللہ کی رضا کے لیے سنا رہے ہیں, کیونکہ قرآن سنایا جاتا ہے. اور پیش نظر یہی ہونی چاہیے, انسان جب اللہ کی رضا کو مقدم رکھتا ہے تو اللہ دنیا خود ہی عطا فرما دیتا ہے. پیش نظر اللہ کی رضا ہونی چاہیے اور اس کا اظہار کرنا چاہیے. اگر کسی دل کے کونے میں کوئی کسی سے کوئی مالی مفاد تما بھی ہے تو اللہ پاک اس تمے کو لوگوں میں کیوں جھکائے, اللہ اپنی ذات سے وہ پورا فرما دے. ہماری دعا یہی ہے, یا اللہ تو نے دیندار بنایا ہے تو پھر دنیا والوں کے سامنے اپنی ذات کے لیے ہاتھ نہ پھیلنے دے. اور الحمدللہ مجھے یہاں 5 سال ہے, کوئی ایک بندہ نہیں کہہ سکتا کہ جس سے میں نے اپنی ذات کے لیے سوال کیا ہو کہ میری تنخواہ کم ہے, میرا گھر کا گزارا نہیں ہو رہا, مجھے پیسے دیجیے. الحمدللہ ایک ٹکے کا سوال نہیں اور نہ کروں گا, اور کرو تو دھتکار دو. یہ علماء کی شان کے خلاف ہے, یہ علماء کی شان کے خلاف ہے. وہ بھکاری نہ بنے. ہاں علماء کا کام ہے دین کے لیے آپ کو بلائیں. اب دین کو پیسے کی ضرورت ہے, پیسہ تو یہ نبی کی سنت ہے, اللہ کے نبی نے مانگا, ورنہ سرکار دیوار کو ہاتھ فرماتے سونا ہو جاتا. 27ویں رمضان مبارک آ رہا ہے, آپ جو ہے وہ تعاون کرو. یہ آپ مسجد کے ساتھ دین کے ساتھ تعاون کرتے ہیں, مولوی کے ساتھ تعاون نہیں کرتے. یہ جتنے بھی حلقے ہو رہے ہیں ان حلقوں میں آپ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے شامل ہو. تھوڑا وقت دیں, صبح درس حدیث ہوتا ہے اس میں شامل ہو. اسی طرح ظہر کے بعد ہمارے سلیم بھائی درس دیتے ہیں اس میں بیٹھا کریں. عصر کے بعد درس ہوتا ہے اس میں بیٹھا کریں. عشاء کے بعد صلاۃ التراویح میں شامل ہو. پھر مختصر خلاصہ قرآن ہوتا ہے اس میں شامل ہو. ابھی پچھلے اتوار کو آپ نے سیکھا تھا میت کو غسل دینے کا, کفن دینے کا طریقہ. تو انشاءاللہ اس اتوار کو ہم آپ کو سکھائیں گے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سونے کا طریقہ کیا ہے, میرے آقا سرما کیسے لگاتے تھے اس کا طریقہ کیا ہے, میرے آقا قمیض مبارک کیسے پہنتے تھے اس کا سنت طریقہ کیا ہے, جوتا مبارک کیسے پہنتے تھے, آپ لباس مبارک کیسے اتارتے تھے. یہ نبی کی ادائیں ہم انشاءاللہ عملی طور پر پریکٹیکل کر کے ہم انشاءاللہ سکھائیں گے. تو کیا خیال ہے آپ پچھلے اتوار کی طرح اس اتوار بھی آپ آئیں گے؟ اتوار کو انشاءاللہ تعالی. تو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو رمضان المبارک کی برکت سے معاف فرمائے اور مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.